Bismillahirrahmanirrahim. I am your English language teacher, Miss Sadia, and today the topic under discussion is types of communication, which is part B of previous lecture, communication and its type. I think I have cleared the point. What is communication? Communication is a two-way process, and it is always taking place in every moment. It may be a business discussion, it may be a business communication, academic or planned communication, or it may be informal communication, gossips with friends, colleagues. Everything comes under the main umbrella term of communication. And then we have discussed the types of communication, and only we have discussed the first type of communication, that was the internal communication. What was the internal communication? Which happened within the same organization or same boundary, from one colleague to another, from boss to junior, junior to superior, anything, or between colleagues. And there were three main categories of this internal communication. That was, the first was downward communication, that from boss to employees, means senior to junior, and then upward communication, junior to senior, and then the horizontal communication we had discussed, that was you can say the between colleagues or people of the equal rank or status. Now come towards the next type of communication, that is external communication, then formal communication, informal communication, oral communication, non-verbal communication, and written communication. Now have external communication. अब external communication क्या होती है? It is this communication is from a person or a company to a person belonging to another company, यानी outside the organization. एक यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी से बात करेगी, एक टीचर अपनी क्लास में तो बात नहीं करेगा, किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से बात करेगा, या एक टीचर अपने किसी बाहर की यूनिवर्सिटी के कलीग से बात करेगा, यानी आउटसाइड द बाउंड्री. ठीक है. इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स. अब ये होती किस तरह से है कि ये लेटर्स हो सकते हैं, प्रपोजल्स हो सकते हैं, या रिपोर्ट्स हो सकती हैं. हाँ जी, आप जब बिज़नेस पर्पज़ के लिए बाहर के कंट्रीज से बात करते हैं तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर, प्रपोजल और रिपोर्ट्स. इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग गुडविल. अब ये होती क्यों है? जब हम किसी दूसरे कंट्री जो बहुत बड़ा बिज़नेस करते हैं, यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वो बाहर के लोगों से भी बात करते हैं. उनकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी एक्सपैंड की होती है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बात करने के बाद दे डिस्कस द सेम मैटर विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस टू एक्सपैंड योर बिजनेस. एंड उसके साथ साथ दे आर maintaining their relations on the basis of goodwill, and then the profit, or definitely the productivity and the image. अब पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जब जाएंगी दूसरे मुल्कों में, तो दे आर क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ आस, ऑफ आर कंट्री. तो ये भी सारी चीज़ें आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होती हैं. द थर्ड पॉइंट इज़ फॉर्मल कम्युनिकेशन. अब फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है? इसमें जो स्टेटस एंड पोजीशन है, सेंडर का भी रिसीवर का भी, बोथ आर इम्पॉर्टेंट. कि एक हाई रैंक का बंदा दूसरे हाई रैंक के बंदे से बात कर रहा है. और फॉर्मल कम्युनिकेशन इन ऑलवेज द प्लान्ड कम्युनिकेशन, अनप्लान्ड नहीं होती. आप ऐसे मुंह उठा के किसी से गॉसिप करने, चिट चैट करने नहीं चले जाते. यू प्लान इट, यू टेक द टाइम टू बुक द टाइम एंड यू डू द प्लान्ड डिस्कशन. कि मैंने उस बंदे से, और समटाइम्स यू सेंड योर एजेंडा एज वेल, कि हम आपसे बात करने आ रहे हैं और इन टॉपिक्स पे बात करेंगे. ठीक है. और दिस कम्युनिकेशन may be between managing director and the general manager. It is official and planned, and formal communication establish relation between two positions. और ये टू पोजीशंस के दरमियान में रिलेशंस भी कायम करती है. यानी हमारा प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्रीज़ के प्राइम मिनिस्टर से बात करेगा, फॉर्मल कम्युनिकेशन है. अपने हमारी फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग करेगा, कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा. तो ये इस टाइप की कम्युनिकेशन होती है. एक बॉस दूसरे बॉस से, एक एम्प्लॉय हाई अथॉरिटी दूसरी हाई अथॉरिटी से जब बात करती है, तो दे मेंटेन वेरी गुड रिलेशंस विद ईच अदर. द नेक्स्ट इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. हाँ जी,
फॉर्मल कम्युनिकेशन तो प्लान्ड होती है, बट इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इज़ नॉट नेसेसरी टू बी प्लान्ड. अब इसमें गॉसिप्स हो सकती हैं, कोई पोजीशन इन्वॉल्व नहीं होती, कोई स्टेटस इन्वॉल्व नहीं होता, बिकॉज इट इज़ इनफॉर्मल. और इसमें ना ही कोई अपॉइंटमेंट होती है, आप जब जिससे चाहें मिल लें और जो भी बात है कर लें. अब वो क्या क्या, और ये फ्लेक्सिबल होती है. इसमें स्पॉन्टेनियस कन्वर्सेशन होती है, क्योंकि प्लान नहीं होती है. आप किसी एक बंदे से मजाक कर रहे हैं और वो भी उसी मजाक में जवाब दे रहा है, तो ये स्पॉन्टेनियस होगी, प्लान नहीं होगी. और ये होती कि इनके दरमियान है, आपके फैमिली मेम्बर्स के दरमियान. इफ़ यू आर सिटिंग विद द फैमिली ओवर द टी इन द इवनिंग टाइम, तो वो भी आपकी जितनी भी डिस्कशन है वो आपकी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगी. आप अपने दोस्तों के साथ जो बात करते हैं, आपस में जो हंसी मजाक गॉसिप्स करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कम in the form of informal communication. And the next one is oral communication. नेम से ही पता चल गया कि oral communication क्या होती है, कि oral होती है, इसमें कोई written चीज़ इन्वॉल्व नहीं होती. ये भी किसी हद तक अनप्लान्ड भी होती है. इसमें गॉसिप्स भी होती हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, डिबेट्स भी होती हैं. ठीक है, डिबेट्स, स्पीचेस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये oral communication में आती हैं. वही हाफ प्लान्ड हाफ अनप्लान्ड. ठीक है, और ये करती हैं, दे कन्वे मैसेज ऑरली. वर्बल मैसेज होता है, इसमें कुछ रिटर्न नहीं होता, कुछ रिकॉर्डेड नहीं होता, कुछ समटाइम्स इट इज़ प्लान्ड और समटाइम्स इट इज़ अनप्लान्ड. और ऑरल कम्युनिकेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है वो ये है कि ये टाइम सेविंग है, टाइम सेव करती है. और इसको आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन करेक्ट कर सकते हैं. कि आप किसी बंदे से बात कर रहे हैं, यू आर ऑब्जर्विंग हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, तो बंदे के मूड जो है ना वो कुछ अच्छा नहीं है, तो यू मे बी स्टॉप और यू चेंज द थिंग्स. और अगर पीपल आपकी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो यू चेंज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट. अपने इंटरेस्ट को छोड़ देते हैं, अपनी बात ही नहीं करते, आप बात को मोल्ड कर देते हैं. ठीक है, कोई बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली, कोई बहुत ज़्यादा जॉली मूड में है तो उसके अकॉर्डिंगली आप बातें करने शुरू कर देते हैं. और क्योंकि ये ओरल होती है, टाइम सेविंग होती है, एक्सप्रेशंस को आप नोट कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं, तो ये सिचुएशन को करेक्ट कर देती है. द नेक्स्ट इज़ रिटन कम्युनिकेशन. अब ओरल थी, एक वर्बल थी, एक नॉन वर्बल है, यानी वो रिटन है, वो ब्लैक एंड वाइट में हर चीज़ का प्रूफ होता है. अब ये सिंबल्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं, और इसकी एग्जांपल लेटर, फैक्स, ईमेल्स, पीरियोडिकल्स, मेमोज, इस टाइप की चीज़ें होती हैं. और इसकी सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आपके पास रिकॉर्ड होता है. इफ़ यू हैव सेंट एन ईमेल और अ फैक्स और समथिंग और अ लेटर टू समवन एल्स एंड ही वाज टेलिंग अ लाई कि आपने यूँ नहीं कहा तो यूँ नहीं कहा, यू कैन शो दैट थिंग इन ब्लैक एंड वाइट कि दिस इज़ द प्रूफ. ठीक है, ये प्लान्ड भी होती है, क्योंकि आप प्लानिंग करके कोई लेटर लिखते हो, यू चूज़ वर्ड्स अकॉर्डिंगली एंड यू सेंड देम विद सम प्लानिंग, और फिर वो प्लानिंग सारी जो है वो आपके बेनिफिट में चली जाती है. इसी तरह द लास्ट वन इज़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या चीज़ आ जाती है, आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी मूवमेंट, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, आपकी पोस्चर. ठीक है, आपके जेस्चर्स, पोस्चर आपके बैठने का, खड़े होने का जो स्टाइल होता है, और आपके जेस्चर, जिस तरह से आप बॉडी मूवमेंट करते हैं, नूडिंग ऑफ योर हेड, मूवमेंट ऑफ योर हैंड्स, आई कांटेक्ट, ये सारी चीज़ें आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चली जाती हैं. और ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल. कि आपने कुछ भी नहीं कहा, बट कुछ भी ना कहा और कह भी गए, ये वो वाला हिसाब था कि आपने एक्सप्रेशन से, वो एक और भी चीज़ है कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स. एक्शंस जो हैं आपके वर्ड से ज़्यादा पावरफुल होते हैं. कि आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आप किसी बंदे को बड़े गुस्से से देख रहे हैं और मे बी यू आर हैविंग अ स्माइल ऑन योर फेस, तो अगला बंदा आपसे उसके अकॉर्डिंगली बात करता है. अगर अच्छा साइकोलॉजिस्ट है तो वो ऑब्ज़र्व कर लेता है कि इस बंदे का मूड इस वक्त क्या है, थ्रू हिज फेशियल एक्सप्रेशंस, थ्रू आई कांटेक्ट, कि वो बात क्या करना चाह रहा है. आई थिंक ऑल द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन and what is communication and all the types of communication, these are very clearly understood by you all. And I think you can easily grasp the meaning and the quality of this. You can keep in mind, and this is quite an easy lecture. Thank you.